Hi everyone, welcome to JEE Advanced 101। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम जो मेनली चीज़ें कवर करेंगे आज दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास या सो वी हैव थ्री एसिड बेस थ्योरी। Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis acid base concept। So we have basically three acid base theories, and the very first that was given was Arrhenius concept, and then Bronsted-Lowry, and then Lewis acid base concept. So let's proceed one by one. Arrhenius concept. So Arrhenius concept is very fundamental, and it says that acid is something which give H plus ion in water, and base is something which give OH minus ions in water. So example would be HCl, and here example would be NaOH. But the problem over in this concept is that Arrhenius concept cannot be applied when there is no water present. For example, HCl gas. As per Arrhenius concept, HCl gas is not an acid, because when it is in gaseous format, it is not H plus plus Cl minus. When it is dissolved in water, then it gets dissociated into H plus and Cl minus. So Arrhenius concept का जो ड्रॉबैक रहा है वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि इसमें वाटर का मैंडेटरी होना बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब विदाउट वाटर वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एसिड बेस। एंड एक और चीज है कि इसमें नॉन प्रोटीन जैसे कि जिसमें एच नहीं है उसकी एसिडिटी नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 is a acidic in nature, and but as per Arrhenius concept we cannot explain it. So this is very fundamental concept of acid base, and it is taught in junior grades also. Here H plus ion is also written as H plus 3 H3O plus hydronium ion. Now moving next to Bronsted-Lowry concept. So as per Bronsted-Lowry concept, acid is what and what is base. Acid is something which donates proton, and base is something which have proton acceptor. So for example, here we have NH3 aqueous, NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. So here it is gaining an H plus. Basically it is accepting an H plus. So NH3 is what? Base. And here it is losing H plus. So it is what? It is acid. So proton acceptor are bases and proton donors are acids. In Bronsted-Lowry concept, there is something called as conjugate concept. Conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair.
ये कुछ खास नहीं है, बस ये है कि जो बेस H प्लस गेन करने के बाद जो बन रहा है, मतलब ये वाला चीज, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड H प्लस लूज करने के बाद बन रहा है वो बेस बन जाएगा, और दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस। पॉइंट टू बी नोटेड कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसमें एक ही H प्लस का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, ये एक H प्लस लूज करेगा तो इट विल बी H2PO4 माइनस। इसे अगर हम एसिड मान रहे हैं, ये अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो एसिड ब्रॉन्शियल-लॉरी कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फंडा यही है कि जो बेस एक H प्लस गेन करने के बाद जो बन रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। तो मतलब एक बेस का ही फॉर्मेट अलग हो जाता है, तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं होता, लाइक NH3 कैन आल्सो बिहेव एज एसिड। NH3 it will be here, NH3 is losing a H plus, so it is acid and this is base। तो ऐसा है, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर रिलेटिव चीजें में हम बात कर रहे होते हैं कि NH3 H2O के रिस्पेक्ट में बेस है, ऐसा। तो अब एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, दैट इज एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्या होता है? एम्फीप्रोटिक की बात कर रहे हैं तो वाटर इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक। वाटर को एम्फीप्रोटिक कहा जाता है क्योंकि वाटर एक H प्लस लूज करके OH माइनस बना सकता है, और वाटर एक H प्लस गेन करके H3O प्लस बना सकता है। So since water can act as base and acid both, so it is called as amphiprotic. Several examples are also possible, like H3PO4. When it loses, it forms H2PO4 minus, and then HPO4 2 minus, and then PO4 3 minus. So this is amphiprotic in nature. This is also amphiprotic because you can see that it can lose one H plus or it can gain one H plus. So it can go both ways. तो दोनों तरफ जा सकते हैं, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, इसलिए इसे एम्फीप्रोटिक कहते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसमें से एक -1 H प्लस कर देंगे, और बेस का अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें +1 H प्लस कर देंगे। अब अगर आगे बात करें हम इसके बारे में और डिटेलिंग करते हैं कि ब्रॉन्शियल-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ऐसा है क्या, तो ब्रॉन्शियल-लॉरी बेस कॉन्सेप्ट में जो बेस एसिड है, एसिड के पास ट्रांसफेरेबल H प्लस होना चाहिए, एंड बेस के पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर टू एक्सेप्ट H प्लस, ऐसा होना चाहिए। तो इसका एक मैंने जो पहले बताया है कि इसमें एसिड और बेस रिलेटिव टर्म हो जाते हैं, तो ये इसका एडवांटेज भी है। और इसमें हम एक और चीज कंसिडर कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे मैंने वाटर लेके एक्सप्लेन किया था, कोई और भी यहाँ पर अगर सॉल्वेंट होता है सो वी कैन एक्सप्लेन दी एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ, मतलब एसिडिक है या फिर बेसिक है ये हम बता सकते हैं। लेकिन अर्जीनियस कॉन्सेप्ट में क्या था कि H2O का प्रेजेंस वाज मैंडेटरी, H2O प्रेजेंस इज मैंडेटरी, ऐसा है। अर्जीनियस कॉन्सेप्ट में H2O का प्रेजेंस मैंडेटरी है, लेकिन ब्रॉन्शियल-लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या है, हम सॉल्वेंट कोई अलग भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वाटर ही हो। अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ
ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस तो इसमें स्ट्रेंथ एसिड और बेस की जो मेजर की जाती है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली लूज कर सकता है प्रोटॉन फॉर एसिड एंड कितना इजीली गेन कर सकता है प्रोटॉन फॉर बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जब अगर हम बात करें तो वो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देते हैं सॉल्वेंट में। लाइक अगर HCl की बात करें, यहाँ पर ये Cl माइनस आएगा एंड यहाँ पर ये H3O प्लस आएगा। तो यहाँ पर HCl Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज डोनेटिंग H प्लस। और यहाँ पर H2O है, तो इसके पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसे ये एक्सेप्ट कर लिया है इसने। तो यहाँ पर दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक की यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम H2 मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HS माइनस और H2O का देखें हम, तो इसमें ये जो इक्विलिब्रियम आ रहा है H3O प्लस, यहाँ पर H2 माइनस है, यहाँ पर भी HS माइनस जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और दोनों के पास लाइक यहाँ पर HCl है और यहाँ पर HS माइनस है, दोनों के पास H प्लस लूज करने का टेंडेंसी H2O से ज्यादा है, तभी तो H2O गेन कर रहा है ना। तो ऐसा, लेकिन अगर हमें पता करना हो कि यहाँ पर तो दोनों डोनेट कर रहे हैं H प्लस, HCl भी कर रहा है HS माइनस भी कर रहा है, बट वी वांट टू नो दी स्ट्रेंथ बिटवीन HCl एंड HS माइनस, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिड। तो ये पता करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कॉन्जुगेट का। तो इसका जो कॉन्जुगेट है HCl का जो कॉन्जुगेट है दैट इज Cl माइनस, एंड HS माइनस का जो कॉन्जुगेट है दैट इज H2 माइनस। और यहाँ पर नेमिंग भी कर लेते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। ओके, तो एसिड का कॉन्जुगेट हमारे पास बेस आता है, तो Cl माइनस आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पर H2 माइनस आ रहा है। अगर हम पता करना हो हमें कि दोनों में से कौन मतलब एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, तो हम ये देख रहे होंगे कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर अगर ये एसिड है तो सॉल्वेंट हमारे पास बेस की तरह बिहेव करेगा, तो बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा ना, कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इफ गिवन एसिड इज stronger than conjugate acid of, if given acid is stronger than conjugate acid of solvent, then हम कहते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट अगर मान रहे हैं तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H3O प्लस होगा ना, क्योंकि वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो एक H प्लस गेन करेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड वाटर का H3O प्लस होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ना, जो गिवन वाले होंगे, लाइक इसकी बात कर रहा हूँ, ये HS माइनस HCl इसकी बात कर रहा हूँ, तो जो गिवन वाले होंगे वो अगर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो वीक है, मतलब H3O प्लस देने की टेंडेंसी जो गिवन वाली है वो H3O प्लस से कम है, तो वो वीक एसिड की कैटेगरी में होगा। और एसिड की एबिलिटी टू लूज अ प्रोटोन ये हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं और इसे हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आता है, दैट इज K। इधर से हमें एसिड का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, तो जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और इसमें एक और चीज डिफाइन करता है दैट इज Pk, दैट वैल्यू इज
बेसिकली log माइनस के ए। तो जितना ज्यादा के ए वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और उतना ही कम पीके वैल्यू होगा। यहाँ पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका ड्रॉबैक क्या आ सकता है कि ट्रांसफरेबल H प्लस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर H प्लस नहीं हो, लाइक अगर BCl3 की बात करें, AlCl3 की बात करें, इसमें H प्लस डोनेट करने के लिए नहीं है, बट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर भी जहाँ पर H प्लस की बात आ रही है और H प्लस मॉलिक्यूल में है ही नहीं तो वो डोनेट किधर से करेगा। तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है और वी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द acidic nature of the electron deficient molecule. तो मैंने जो पिछले स्लाइड पे एक चीज लिखा है, जो बताया है, वो मैं एक बार फिर से लिखूंगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। अगर हम एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी एसिड का और बेस का स्ट्रॉन्ग नेचर के बारे में, तो हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो मैंने लिखा है ये वाटर के रिस्पेक्ट में है। अगर एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वाटर यहाँ पर बेस की तरह रिएक्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, मतलब एक H प्लस गेन करेगा तो H3O प्लस बना। लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो OH माइनस बनाएगा। तो ये चीज है। तो अगर जो हमारे पास एसिड है, जो गिवन वाले एसिड है, अगर उनका टेंडेंसी H प्लस देने का अगर H3O प्लस से ज्यादा है, मतलब H3O प्लस यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्वेंट है, OH माइनस क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर अगर मैं वाटर के जगह पे अगर कोई और सॉल्वेंट ले लूँ तो वो चीज डिफरेंट हो जाएगी, मतलब फिर वहां पर उसी रिस्पेक्ट में उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा टेंडेंसी अगर उस एसिड का है H प्लस देने का तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एंड अगर बात करें बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब OH माइनस देने की टेंडेंसी कॉन्जुगेट ऑफ द सॉल्वेंट से, कॉन्जुगेट यहाँ पर कॉन्जुगेट कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बेस वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर H2O की तरह रिएक्ट कर रहा है, वाटर जो है एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा होगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा अगर OH माइनस देने की टेंडेंसी है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जो कि मतलब मिस कंफ्यूज होता है, मतलब लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं या फिर अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग, conjugate of stronger is weaker and conjugate of weaker। पहले ये बता देता हूँ, पहले ये वाला स्टेटमेंट बताते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो फिर से यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि HCl का H प्लस देने का टेंडेंसी, एक मिनट रुको, इससे है ना इरेज करके ऐसे लिखते हैं ताकि हाँ, यहाँ पर ये Cl माइनस आएगा और यहाँ पर ये H2O प्लस आएगा। तो यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का कारण क्या है कि वाटर, मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका जो कॉन्जुगेट है H3O प्लस, इससे ज्यादा टेंडेंसी, मतलब इससे ज्यादा टेंडेंसी H प्लस देने की HCl के पास, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H प्लस देना चाहता है, तो ये यहाँ पर जो Cl माइनस बना रहा होगा, ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो तो वीकर होगा ना। मतलब अगर कोई चीज मतलब इधर से इधर स्पॉन्टेनियसली जा रही है, मतलब आराम से जा रहा है,
तो इधर से इधर आने में तो फिर उसे दिक्कत होगी ना। तो HCl H+ इजिली डोनेट कर पा रहा है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन Cl-H+ गेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब इधर से इधर जाना बहुत मुश्किल, इसलिए ये काफी वीक कॉन्जुगेट होगा। अब H2O की बात करें तो H2O यहाँ पर है, बेस है, और ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड हो जाए, ठीक है। अब इसे इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी H+ लेने की Cl- से ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी यहाँ पर H2O और Cl- में अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हो, क्योंकि HCl का जो कॉन्जुगेट है Cl- उससे स्ट्रॉन्गर है H2O, तभी तो ये यहाँ पर H+ गेन कर पा रहा है। तो अब H3O+ मतलब ये स्ट्रॉन्गर है, तो H3O+ इधर से इधर नहीं जाएगा, मतलब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। H2O स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, तो H3O+ इसका जो कॉन्जुगेट है दैट विल बी वीक कॉन्जुगेट। तो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीकर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा, बेसिकली स्ट्रॉन्गर कहूंगा, मतलब कंपेयर इन कंपैरिजन हम बात कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गर का कॉन्जुगेट वीकर होता है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्जुगेट ऑफ वीकर इज स्ट्रॉन्गर, conjugate of weaker is stronger। तो conjugate of weaker is stronger की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम आएगा, ये यहाँ पर एसिड वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसके लिए ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें ना तो ये वाला स्ट्रॉन्ग की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वाटर की बात करें तो OH- से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। ये यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं ना, तो हम इन कंपैरिजन बात करते हैं कि H2O के रिस्पेक्ट में CH3O- के पास ज्यादा टेंडेंसी है H+ गेन करने, आई मीन हाँ H+ गेन करने का, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पर ये मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस के हम कैसे कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट सेंस में स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमें कंपेयर करना है तो हम OH- से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वीक का स्ट्रॉन्ग जा रहा है, वीक का स्ट्रॉन्ग जा रहा है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। बट अगर हम ऐसा देखें कि पैरामीटर अगर हम OH- रख रहे हैं और OH- के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करना चाहें कि ये कितना ज्यादा बेसिक है और ये कितना ज्यादा, तो दोनों ही वीक होंगे एज कम्पेयर टू OH-। तो मैं एक बार समराइज कर दूं इन चीजों को जो मैंने बताया है अभी। कॉन्जुगेट एसिड conjugate acid of a strong base and conjugate base of a strong acid, conjugate acid of a strong base and conjugate base of a strong acid, they are spectator ion, मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, दे आर स्पेक्टेटर आयंस। यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट जो ये है, तो ये स्पेक्टेटर आयन है, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, Cl- कुछ नहीं करेगा।
इट विल नॉट हिंडर एनीथिंग, क्योंकि उनके पास मतलब पीछे जाने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब दिस कैन नॉट गो बैक, ऐसा नहीं जा सकता, क्योंकि स्ट्रांग है तो काफी वीक बनता है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना तो उसका कॉन्जुगेट उतना ही ज्यादा वीक होगा। और conjugate acid of a weak base is a stronger acid than H2O but weaker than H3O plus। मैं लिख देता हूँ, conjugate acid of a weak base is, देखो यहाँ पर weak base है ना, तो यहाँ पर is stronger acid है, weak base है तो यहाँ पर stronger acid आ रहा है, stronger acid than H2O plus but weaker than H3 plus। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग को जनरली ये नहीं पता होता, वो ऐसे मान के चल रहे थे कि वीक का स्ट्रांग होगा, बट स्ट्रांग भी तो देखो, स्ट्रांग भी तो किसी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो वो H2O के रिस्पेक्ट में है, H3O के रिस्पेक्ट में नहीं है। H3O के रिस्पेक्ट में जब हम चीजें देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, अगर वो चीज H3O के रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रॉन्गर होता, मतलब H3O से ज्यादा उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी होती, तो हम कह सकते थे कि मतलब यहाँ पर वीक का जो है वो एक्चुअल सेंस में स्ट्रॉन्ग आ गया है, बट एक्चुअल सेंस में नहीं आता है, मतलब इन कंपैरिजन टू H2O वो स्ट्रॉन्गर आता है। सिमिलरली हम बेस के लिए भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O बट वीकर देन OH-। और एक और चीज देखो, वीक की बात कर रहे हैं ना, तो वीक और वीक में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वीक वाला इधर जाके मतलब इधर वीक है तो ये पूरा वो हो जाएगा, इसलिए मतलब एक्चुअल सेंस में दोनों ही वीक ही आते हैं, बट कंपैरिजन हम कर रहे हैं इसलिए कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में वो वहां पर स्ट्रॉन्गर कह देते हैं, मतलब वीकर का स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर का वीकर कह देते हैं, ये कंपैरिजन वाला सेंस है, एक्चुअल वाले सेंस में ऐसा नहीं है, वीक का कॉन्जुगेट वीक ही होगा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट भी वीक होगा, ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है और वो काफी ज्यादा वीक होता है, लेकिन अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा सॉल्वेंट के मामले में, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा स्ट्रॉन्गर। अब एक और चीज की बात करेंगे यहाँ पर हम, दैट इज लेवलिंग इफेक्ट के बारे में। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर में क्या होता है कि अगर H प्लस देने की टेंडेंसी, कोई एसिड है हमारे पास, अगर उसकी टेंडेंसी H प्लस देने की H3O प्लस से ज्यादा है तो वो डिसोसिएट कर जाएगा, और दैट विल, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक एसिड है, से उसे हम HA कह रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाटर में जब हम डालेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, डेट विल गो टू मतलब फिनिशिंग तक चला जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ बिकॉज ऐसे सोचना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि H3O प्लस से ज्यादा टेंडेंसी है H प्लस देने की। तो एक सवाल होता है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन सॉल्वेंट वो कौन सा होगा, मतलब कोई सा भी हम अगर एक मेरे पास एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर हम वाटर ही मान के चल रहे हैं और जनरली हम वाटर ही कंसीडर करते हैं, तो से वी हैव मतलब हमारा पास जो सॉल्वेंट है दैट इज H2O, और हम पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा जो कि सॉल्वेंट में रह सकता है विदाउट गेट डिसोसिएटेड, तो वो होगा H2O प्लस, मतलब सॉल्वेंट का कॉन्जुगेट एसिड ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड मतलब कॉन्जुगेट एसिड है ना, एज अ बेंचमार्क की तरह बिहेव करता है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, इसके नीचे वीक एसिड आएंगे, वीक वाले सारे वैसे ही रह जाएंगे और स्ट्रॉन्ग वाले सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो उस वाटर में रह पाएगा, मतलब विदाउट गेटिंग डिसोसिएटेड, मतलब
डिसोसिएट तो ये भी होगा बट दैट कैन रिमेन, ये तो कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और ये पार्शियली होंगे, मतलब काफी कम होंगे, पार्शियली काफी कम डिसोसिएट होंगे, लेकिन H3O प्लस वाला वो एज इट इज रह सकता है। तो ये चीज हम बेस के लिए भी, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा और ये यहाँ पर वीक बेस आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैट कैन प्रेजेंट इन वाटर इज OH माइनस। OH माइनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है जो कि वाटर में प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब OH माइनस से जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो सारे डिसोसिएट कर जाने हैं और वीक वाले जो है वो सब काफी कम डिसोसिएट करने वाले हैं। So we can say that in H2O the strongest acid that can exist is H3O plus, and in H2O the strongest base that can exist is OH minus. अब इसी की बात अगर हम करें, इसके बाद हम बात करेंगे लुईस एसिड बेस। लुईस एसिड बेस, तो लुईस भाई साहब ने क्या कहा है कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। इनका कहना है लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनेटर। मतलब एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब AlCl3 ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस कौन है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, NH3 इनके पास लोन पेयर है ना, इट कैन डोनेट। तो लुईस एसिड बेस में ये फंडा है। और जब लुईस एसिड बेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हमें मतलब उतना पंगा नहीं होता है, मतलब इसमें हम सारी चीजें बता पा रहे हैं कि AlCl3 का एसिडिक नेचर, वी कैन गवर्न बाय दिस लॉजिक। ये हम बता पा रहे हैं। तो अब एक और चीज है, जो कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास 3 लॉ है, मतलब लॉ नहीं कॉन्सेप्ट है, अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड कौन है, बेस कौन, H प्लस डोनर, H प्लस हाँ आई मीन OH माइनस डोनर, H प्लस डोनर और जिसे हमने लिखा था प्रोटॉन डोनर, H प्लस एक्सेप्टर। और इसका बात करें तो लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। तो इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज है नोटिस करने वाली कि अर्हीनियस का एसिड, जितने भी अर्हीनियस वाले एसिड है वो सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड कंसिडर किए जा सकते हैं, और जितने भी ब्रॉन्स्टेड वाले बेस हैं वो सारे लुईस वाले कंसिडर किए जा सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो हमारे पास H प्लस डोनर है, ये अर्हीनियस की बात कर रहे हैं। अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H प्लस जो डोनेट कर पा रहा है, और ब्रोंस्टेड के भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट कर पा रहा है, प्रोटॉन डोनर, तो दोनों के कॉन्सेप्ट से एसिड क्या है, अर्हीनियस वाला और ब्रोंस्टेड वाला एसिड सेम है। लेकिन अर्हीनियस वाले में क्या फंडा था कि हमें वाटर का प्रेजेंस नेसेसरी था, लेकिन ब्रोंस्टेड में वो नहीं है। तो ब्रोंस्टेड एक सब कैटेगरी की तरह है कि अर्हीनियस के ऑल द अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, बट उल्टा नहीं कह पाएंगे। और सेम अगर बात करें ब्रॉन्स्टेड बेस की, तो ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, और H प्लस एक्सेप्ट कैसे करेगा, लोन पेयर के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर बेस के पास क्या होगा, लोन पेयर एक होगा ना जो कि डोनेट करेगा H प्लस को, तभी तो H प्लस उसे एक्सेप्ट हो पा रहा है। और लुईस बेस भी क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनर कर रहा है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड वाले में एक कंडीशन क्या है कि वो
जिसे लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, जो बेस लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो एच ही है, मतलब यहाँ पर एच ही है। एक्सेप्ट लोन पेयर किसे डोनेट किया जा रहा है, एच प्लस को डोनेट किया जा रहा है, तभी तो उसे हम कह रहे हैं कि लोन एच प्लस एक्सेप्टर, राइट ओवर है कि यहाँ पर एच प्लस एक्सेप्टर, और एच प्लस एक्सेप्ट कैसे करेगा, एच प्लस एक्सेप्ट कैसे करेगा, लोन पेयर डोनेट करके। लोन पेयर डोनेट करके एच प्लस एक्सेप्ट कैसे करेगा, लोन पेयर डोनेट करके। और लुइस वाले में क्या है, लोन पेयर ही डोनर, लोन पेयर डोनर, तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर ये जिसे डोनेट करेगा, यहाँ पर तो एच प्लस को डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिसे डोनेट कर रहा है वो एच प्लस होना जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिख दूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। हाँ, तो एग्जांपल हमारा है BF3 और NH3। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, ये इसे डोनेट करेगा BF3, और ये यहाँ पर एक एडक्ट टाइप का बन जाता है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम ऐसे करें, यहाँ पर H2O है और ये यहाँ पर NH3, और ये यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, तो ये NH4 प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये लोन पेयर जिसे डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पर H को ही डोनेट किया जा रहा है ना, इसमें लोन पेयर NH3 का H को डोनेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर NH3 का B को डोनेट, मतलब बोरोन को डोनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कह रहे होंगे NH3 इज लुइस बेस, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं NH3 इज लुइस बेस एंड ब्रोंस्टेड बेस ऑल्सो। तो बेसिकली अर्गीनियस एसिड का बड़ा भाई है ब्रोंस्टेड एसिड, और ब्रोंस्टेड बेस का बड़ा भाई है लुइस बेस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट some important concept. Thank you.